tell me something that how does your day starts? Life of a deputy director. Oh, How was the life of a principal? How was the life of a teacher? And how are you evolving daily? And I want to know how does it feel? great, sir. Jai Hind to each and everyone. I have started my career of teaching in 1999, days back 26, 27 years back. And I'm the person who taught even class 3, and the person who's even taught class 12th also. So, by God grace, I have huge enrichment in terms of the teaching because Mhm. in all the grades, either it is primary wings, then middle school, then high school, intermediate, all the wings that I taught. And my interest always, I love to be with the kids, even if being promoted as vice principal, then also I used to take the class. After that, being promoted as a principal, then also I used to take class. Even presently, I'm deputy director. Still, I love to take class, and I'm taking classes of political Still, science in you are class 12. taking classes. Yeah, class of political science of class 12. So it's amazing experience that you spend your time with kids, and definitely we divide the time. This is very important because being an educationalist, teacher, mentor, administrator, because I have to do all the work. So the entire time durations of 8 hours or 10 hours or 15 hours has to be divided, Hmm. and it need to be well planned so that yes, I can contribute some time to enrichment of the students also, my own enrichment, classroom development, administrative work, managing schools, managing students, and managing the other sides of the school Just also. we are getting into this conversation तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है that you said you come by 5, you leave by 3 or 4, I come by 6:30. 6:30. 6:30, yeah. The huge time. Yeah. मतलब I also try to manage my time कि I come early by 8, leave by 10. Mm-hmm. But sometimes मेरे को ऐसा लगता है कि time management is something जो हम लोग नहीं कर पाते हैं. So how do you manage? मतलब I have seen you always in the school being so sharp, being so to the time. Your day is so well planned. I have seen. मतलब कभी कभी unplanned चीजें भी plan कर लेते हैं आप. Definitely, sir. So मतलब Life what is the is, secret yeah, towards no, that? nothing secret, sir. Life is completely uncertain, which I do believe. हम्म. And suppose if I'm having a time duration of 9 to 10 hours, I knew it very well that उसमें से 7 घंटा planned होगा, 3 घंटा unplanned चीजें आएगी because we are not dealing with the robots or the machines. कि whichever the plan, whichever the flow, whichever the rosters we made, the work will be done like that. We are dealing with the parents, Correct. we are dealing with the kids. So lot many issues usually come, and definitely we'll trap with those issues also. So that we make ourselves free for 2 3 hours. These are the miscellaneous the work that we'll be हम्म. getting, and that has to be managed. And the secret is nothing such. नहीं, Uh, obviously कोई ना कोई secret तो है. secrets और कुछ The नहीं है. everyone Secret in the है, studio would like to know this. right? It's all about the integrity towards your work, right? And I do feel that. I do believe you can say, not feel that institutional pride is the foremost. Means So, I met you first during Jai Shri Ram. just, right. And उसमें भी आपका efforts I have seen the way you have been working, the way you have been executing things. और उसके बाद डे टू डे में भी शूट्स के दौरान स्कूल्स में भी मीटिंग्स में भी मतलब आई हैव बीन एनविंग यू कि योर डे इज सो वेल प्लान्ड. आई हैव ऑलवेज थॉट कि अरे ऐसा डे अगर मेरा प्लान किसी दिन हो जाए तो No, इट no, वुड sir. बी I say ग्रेट. everyone has need to have their own planning because see, हमारे पास time restricted होता है and काम बहुत ज़्यादा होता है. So definitely the आई थिंक द every की work need इज to be planned. डिसिप्लिन. The key is discipline, and but I do feel that integrity towards your work, अच्छा. and I do believe that whatever you wanted to do, give the best. हम्म. So my objective is always what I do feel that whatever you have done, that is the benchmark. Next जो होगा वो benchmark cross तो होना ही है, चाहे कैसे भी हो. दैट इज ग्रेट. And it's a team. Again, it's a team. एक अकेले टीम बंदा एफर्ट कुछ आई नहीं कर गेस है. सकता है. I'm टीम having a एफर्ट आई wonderful गेस है. team, right from my top management, my secretary हम्म. sir, director ma'am, CEO sir, and head of operations ma'am. Apart from that, my all principals, coordinators, teachers. It's a wonderful team, and it's an amazing experience to work with the team because I do realize that अकेले आप क्या कर सकते हैं? Only I can make the plan. The plan has to be एग्जीक्यूशन तो executed टीम by, के yeah, पास the ही team. रहता है. So it's a wonderful team, and importantly,
द मैनेजमेंट दे हैव अ ह्यूज फेथ ऑन अस कि अगर ये काम दे दिया गया तो बेस्ट होगा। अब जैसे आप फेथ की बात कर रहे हो, तो करेंटली द न्यूज़ व्हिच हैज़ बीन गोइंग ऑन इन द ईयर, वो कहीं न कहीं डिस्टर्बिंग है कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आई डोंट नो डेफिनिटली वेदर या, वी शुड डिस्कस दिस और नॉट, डेफिनिटली सर, व्हाई नॉट? बट या, आई थिंक आप समझ रहे हो मैं किस हाँ, तरफ हाँ, हाँ, जाना चाह रहा हूँ। डेफिनिटली। इवन a few months back, I released a video on this also. अच्छा, Yeah, तो this is माय for class, क्वेश्चन इज़ कि yeah, मतलब 9 जैसे to 12. दो है डमी स्कूल्स, आप यू हैव गॉट द न्यूज़। It's awful and a blow to the educational system. बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, पेरेंट्स को समझ नहीं में आ रहा है, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एट द एंड 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद 2030, 2035 में वी आर गोइंग टू सर्वाइव द एंटायर जनरेशंस। हम कर क्या रहे हैं? स्कूल एक जगह नहीं होता है जो खाली पढ़ाता है। हुँ, हुँ। पढ़ाई तो देखिए हर जगह पे मिलता है। इवन ऑनलाइन ऑल्सो टीचिंग कैन बी डन। हाँ, अगर मैं एब्सेंट हुआ तो मिस हो गया तो घर से भी पढ़ाया जा सकता है, पेरेंट्स से भी पढ़ सकते हैं। बट द स्कूल इज अ प्लेस व्हिच आई डू बिलीव दैट एन एजुकेशनलिस्ट आई डू बिलीव दैट वी वर्क फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। एंड उसमें जो स्कॉलस्टिक है, जिसको एकेडमिक बोलते हैं, वो एक छोटा सा पार्ट है। एंड उसमें को स्कॉलस्टिक बहुत लंबा पार्ट होता है। जस्ट टू मेक थिंग्स ईज़ी फॉर आवर व्यूअर्स कि डमी स्कूल सिंपल भाषा में किसको बोलते हैं? डमी स्कूल सिंपल भाषा में ये है कि स्कूल तो है, हाँ, एनरोलमेंट तो है, अच्छा बच्चा एनरोलमेंट नहीं भी है, है। एकदम एनरोलमेंट भी है उस बच्चे का, लेकिन बच्चा नहीं है वहाँ पे, ना बच्चा वहाँ जाता है। मतलब बच्चे का नाम लिखा गया नाम है, लिखा गया है, बट ही इज़ नॉट देयर। इज नॉट प्रेजेंट, नीदर ही गो टू द स्कूल, नॉर द टीचिंग प्रोसेस बीइंग डन। ना स्कूल वहाँ का पे टीचर है। इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं, कैसे होगा? स्कूल का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर होता तो शायद पढ़ा लेते हो। अच्छा, इवन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट नहीं, देयर। नॉट एट ऑल। सो मतलब ये सुन के सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन एक आता है कि तो फिर इन स्कूल को एफिलिएशन कैसे मिलता है? सी एफिलिएशन जिस समय पे लिया गया है, उस समय पे जो हम एफिलिएशन लेते हैं, तो सपोज आई एम बी द मेंबर ऑफ द सीबीएसई हुँ, इंस्पेक्शन कमिटी हैज डन लॉट मेनी एफिलिएशंस। सो जिस समय पे हम जाते हैं तो उस समय के हिसाब से अगर 12 सेक्शंस का एफिलिएशन हमने दे के आया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से 12 सेक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर था, 12 सेक्शन का हमने एफिलिएशन किया, 10+2 का एफिलिएशन देके चलाया। उसके बाद अक्रॉस दायरा 5 साल तो एफिलिएशन किया, 5 साल के बाद फिर वो रिन्यूअल होने वाला है। एंड कोई फिजिकल इंस्पेक्शंस नहीं होते हैं उस समय। अच्छा नहीं होते। पहले बार ही फिजिकल इंस्पेक्शन, उसके बाद बहुत रेयर केस में अगर कोई कंप्लेन हो स्कूल में, तो भी तो फिजिकल ये इंस्पेक्शन। आपको लगता है मतलब मे बी दिस इज़ अ बिग हाँ, अर्लियर लूपहोल यूज्ड इन टू द बी, या एजुकेशन सिस्टम। अर्लियर यूज्ड टू बी कि अगर आपका एक्सटेंशन भी है तो सिंगल मेंबर कमिटी का इंस्पेक्शंस होता था। सो एक फिजिकल वेरिफिकेशन में होता है कि हुँ, 5 साल में जाहिर सी बात है, अगर 200 बच्चा है तो 5 साल में 700 बच्चे होंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा होगा ना। करेक्ट, हाँ, हम्म, ऐसा तो नहीं हो कि 5 साल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर में ही अभी भी 700 बच्चे भी हो नहीं दिख रहे हैं, सकता है, नहीं। करेक्ट। सो अब क्या होता है कि बीच में वर्चुअल इंस्पेक्शन भी आया, वो अच्छा, ऑनलाइन होता था, वो भी ऑलमोस्ट बंद है। आप एप्लीकेशंस के लिए फिल करिए और बहुत कुछ पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स में डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करिए एंड गेट द एप्लीकेशंस एक्सटेंशन, नॉट एप्लीकेशन, ओके। एक्सटेंशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो अब जितना जो स्टूडेंट रेशियो के हिसाब से जितना भी है, सब पेपर वर्क है। तो क्या कोविड के बाद से ऐसा कुछ है कि कोविड मतलब के टाइम से ही ये कोविड सिस्टम शुरू हो गया था, वर्चुअल, वर्चुअल के बाद धीरे ओके, धीरे आप सिस्टम पे आ गए। तो अभी जो भी इंस्पेक्शन होता है, मोर और लेस फ्रेश एफिलिएशन होते हैं। एक्सटेंशन के लिए बहुत ही रेयर केसेस में आपके इंस्पेक्शन होते हैं। अच्छा अब इंस्पेक्शंस ही नहीं हाँ, होते हैं, एक्सटेंशन के लिए होते ही नहीं है। जैसे जस्ट द एक बार अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन इज़ एफिलिएशन इनफ। मिला है तो 5 साल का एफिलिएशन है, देन इट विल बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 5 इयर्स। तो पहले क्या होता था कि जो 5 साल का नेक्स्ट भी एफिलिएशन है, उसके लिए भी कमिटी आता था। कमिटी वेरीफाई कि 5 साल के पहले क्या था स्कूल, अभी कहाँ पे है और बच्चे के हिसाब से स्टेटस क्या है। देन दे गिव द ग्रांट द एक्सटेंशन ऑफ द एफिलिएशन। अब वो सिस्टम नहीं रह गया, तो चल रहा है। तो कोई एक स्कूल अगर 12 सेक्शंस के लिए अप्रूव्ड था, आज 5 साल के बाद वो उसके पास 400 से लेके 1200 बच्चे को उसी में ये सिस्टम सोच में के चले एक जा रहे बहुत ही फनी सा हैं। या इंसिडेंट दिमाग में आ रहा है कि क्या ऐसा कोई पेरेंट आया आपके पास कि क्या आपका स्कूल भी तो डमी नहीं है? या डेफिनेटली एक पेरेंट्स क्या सर, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, इन एवरी 10 आई थिंक नॉट लेस देन 3 ऑफ द पेरेंट्स दे रिक्वायर अच्छा, कि बच्चा ना भेजें, एडमिशन कर लें। तो बोला कि क्या जरूरत है फिर स्कूल भेजने की। अच्छा अभी मतलब ये बोलते हैं कि बच्चा ना हाँ, बच्चा भेजे, ना भेजें, बच्चा कोचिंग में पढ़वा लेंगे। एंड दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम इज फॉर जेई एंड नीट, कि राइट। वो बोलते हैं कि बच्चा ही ना भेजे बस बच्चा ही ना खाली भेजे, बच्चा कोचिंग में सब कुछ कर लेगा, राइट। तो
it's not my principles, neither the principles of my management. And being an educationalist, इससे बड़ा पाप तो नहीं हो सकता है कि हम बच्चा का एनरोलमेंट करा दिए एंड एक भी दिन नहीं आया एंड बच्चा चल रहा है नेक्स्ट ईयर में क्लास 9 से 10 में पुश कर दिए, 10 से 11th में बोर्ड एग्जाम देगा, 11th से 12th में पुश कर दिए. दैट्स नॉट तो द जैसे ड्यूटी दैट यू मतलब आर एक समझ में नहीं आ रहा मेरे को, आई जस्ट वांट टू क्लियर आउट मोर थिंग्स, कि जैसे आप बोल रहे हो कि एफिलिएशन एक्सटेंड हो जाता है, बट देन हाउ इज सीबीएसई एबल टू गेट दोस, मतलब ये तो सीधा सीधा करप्शन है समवेयर डाउन द लाइन, आई थिंक अच्छा दैट कौन इज सा व्हाट इट डोमी इज। स्कूल है ऐसा हाँ, कुछ है. फिर उनको पता कैसे चलता है? क्योंकि डेफिनेटली. जो प्रोसेस है, आई थिंक एवरीवन हैज डन दैट, डॉक्यूमेंटेशन फाइल हो गई तो प्रोसेस चल गया, बट फिर उसके देखो बाद मेरे कैसे पास जाता है? कुछ अभी का एविडेंसेस है. अगर उस एविडेंसेस में हम चलें, सीबीएसई पूरे रूल्स हैं सीबीएसई के पास, हम्म। पूरे बायलॉज हैं सीबीएसई के पास, ओके। राइट, सर्कुलर है कि हम डमी स्कूल को कैसे करो. ऐसा नहीं है कि हम्म। सीबीएसई या गवर्नमेंट या द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस कंसर्न नाउ डेज. सो वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. एंड बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, अभी जितना भी स्कूल है ऑल स्कूल आप यू कैन से क्या बोलते हैं, जीपीएस मैप्ड है. तो अगर जियो हम टैगिंग चाहना किया हाँ, हुआ है। जियो टैग हुआ है. उसके अलावा क्या होता है कि जितना भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये बोला जाता है टाइम टू टाइम मीटिंग में कि ऐसा कुछ है तो आप कंप्लेन करें. सो इवन बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट आई ऑल्सो कैन डू दिस. हम्म। एंड आप भी एक देश का अच्छे नागरिक हैं, आपको भी ऐसा कोई स्कूल लगता है तो आप सीधा सीबीएसई का हेल्पलाइन नंबर में कंप्लेन करें एंड एक्शन होगा. दैट्स श्योर. अच्छा, मतलब वे सरप्राइज ऑफ इंस्पेक्शन. ट्रैकिंग यही है। क्योंकि देखिए बाकी जो लीगल प्रोस्पेक्टिव्स में जो डॉक्यूमेंटेशन में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट आउट. एग्जैक्टली मेरा वही क्वेश्चन था कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन तो सबने दे रखे हैं, या तो फिर सीबीएसई हर एक स्कूल के पास जाकर इंस्पेक्शन सरप्राइज करे। इंस्पेक्शन सी, अब सीबीएसई के पास सर 8-10 हजार स्कूल नहीं है ना. हाँ, They are having एग्जैक्टली। lakhs of school. So ये possibility कब होता है? Even I was also the member of one of the surprise inspections अच्छा। committee. तो होता क्या है कि उस समय पे कोई भी ऐसा सरप्राइज होता है, कोई भी ऐसा एविडेंसेस मिला है तो सरप्राइज उसको अटैक किया जाता है उस स्कूल को. इमीडिएटली हम पहुंचते हैं, द थिंग्स बीइंग वेरीफाइड, चेक एंड नॉट फाउंड अप टू द मार्क एज पर द सीबीएसई एफिलिएशंस, तुरंत उसको सील कर दी जाती है. 2-3 प्रोसेस होते हैं. जैसे ये आपका न्यूज़ आप आया होगा, बीच में देखे होंगे, सीबीएसई का 21 स्कूल को डीएफिलिएट कर दिया एक। या डिग्रेड कर दिया गया. हाँ, एक बार में. अच्छा, ये एक होता बार में। कैसे है? हाँ। ये सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ होगा, रिपीटेडली हम लोग को कंप्लेन मिला होगा, सीबीएसई बोर्ड के पास कंप्लेन गया होगा, वो एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया होगा, उनका डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई किया होगा, चेक किया होगा. बहुत सारे तरीका, अगर हम किसी स्कूल को डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे तरीका है, हम्म। कर सकते हैं. इवन जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो एचई अपना रिपोर्ट देता है, एक्सटर्नल जो आते हैं, सॉरी, एक्सटर्नल जो आते हैं उनको अपना रिपोर्ट देते हैं, तो उस रिपोर्ट में भी समझ में आता है कि ये डॉमी बच्चा है कि रेगुलर बच्चा है, समझ में आता है. अच्छा। Yeah, you'll surprised to find even varieties of uniform. एक ये ही स्कूल में डमी varieties of बच्चा। uniform. Yeah, and I'm not taking the name of any of the school. I was the center superintendent of my school. एंड किसी एक स्कूल के बच्चे आ रहे हैं तो देख रहे हैं, एक व्हाइट यूनिफॉर्म है तो एक ब्लू यूनिफॉर्म है तो एक यूनिफॉर्म है. अरे हाउ इट कैन बी कि एक स्कूल का 5 यूनिफॉर्म. अच्छा, बच्चों को ही नहीं पता कि बच्चों यूनिफॉर्म का, क्या हाँ, है। बच्चा गलती से इवन पूछ भी देंगे तो वो जो दूसरे स्कूल से है, वो एफिलेटेड स्कूल नहीं है, लेकिन वो चला रहा है, हम्म। 10th तक 12th तक का स्कूल चला रहा है, किसी दूसरे से एग्जाम दिलाता है, वो आईडी कार्ड तक पहन के चले आते हैं गलती से. भाई उनको क्या पता है? वो बच्चा ओरिजिनली पढ़ रहा है XYZ स्कूल से एंड जो एग्जाम देने आया है एबीसी स्कूल से, तो उसको थोड़ा इतना आइडिया है. सो पता तो चल जाता है. एंड जैसे पता चला कि हमने सीबीएसई को अगर इन्फॉर्म किया कैसे ऐसे यहाँ पे हो रहा है, तो या इमीडिएटली एक्शंस लिए एक्शंस जाते कैन बी टेकन. एंड उसके बाद जो तरीका होता है, या तो उनको डिग्रेड कर लेते हैं, 12 तक का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो सेकेंडरी स्कूल आ जाएगा, 10 तक का करवा देंगे एफिलिएट. दैट इज डिग्रेडेशन. उनका जो एफिलिएशन को हैं। डिग्रेड मतलब कर मेरे को एक चीज नहीं समझ, डिग्रेडेशन क्यों, मतलब व्हाई ये कांट पनिशमेंट है. सीबीएसई हाँ, नहीं नहीं, हाँ, क्लोज। तरीका है, अलग अलग तरीका है, ये पनिशमेंट है कि भाई सी, सीबीएसई हो या कोई भी हो, एट द एंड हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? चाइल्ड सेंट्रिक. अब बच्चा का गलती तो हुआ है, इट्स ओके, पेरेंट्स भी गलती किए हैं, साथ में स्कूल भी गलती है, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे को नुकसान ना हो, उसको ध्यान रखते हुए ये ध्यान दिया जाता है कि चलो ठीक है, पहले उसको डिग्रेड कर लो, 10+2 है तो उसको क्लास 10th में ले आओ. कुछ केसेस पे होता है कि नहीं, पूरा एफिलिएशन ही रद्द कर दो, तो टाइम दे दी जाती है 2 साल, क्योंकि जो बच्चा अभी 9th में एनरोल हो चुका है वो 10th में निकल जाए, जो अच्छा, 11th मतलब में एनरोल बच्चों रहेगा का वो 12th में. फ्यूचर खराब अदरवाइज ना वो हो। जाएंगे कहाँ? करके क्या गया है, आपको न्यूज क्लिपिंग, अभी का लेटेस्ट न्यूज क्लिपिंग है, लगभग 21 सीबीएसई स्कूल है हम्म। जिसको कि डीएफिलिएट कर दिया गया.
एंड कहाँ के थे मतलब? सरप्राइजिंगली सब राजस्थान, दिल्ली, ऐसा नहीं है कि बनारस में भी नहीं है, बनारस में भी है। अच्छा, बनारस में भी भी है। है, एकदम, एकदम है बनारस में। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द स्कूल्स बट एवरीवन न्यू इट। बनारस में भी है। एंड जब दिल्ली में मैं उन्हीं स्कूल वालों को, ओनर को भी और पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि जो अभी दिल्ली में और राजस्थान में हो सकता है, तो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड द स्कूल ओनर्स, बनारस में भी होगा एंड बहुत जल्द बनारस में भी होगा। सो इससे हम लोग बाहर निकले, बिकॉज एट द एंड हम, जो मैं बोला कि चाइल्ड सेंट्रिक होलिस्टिक डेवलपमेंट, किस चीज का डेवलपमेंट, ये तो हमारा खुद का सेल्फ डेवलपमेंट, स्कूल का सेल्फ डेवलपमेंट भी नहीं होगा। वी हुँ। आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एट द सेम टाइम वी आर प्लेइंग विद द एजुकेशनल सिस्टम। जैसे अभी आपने बताया कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो निकले हैं, वो राजस्थान, दिल्ली, मतलब आई एम शॉक्ड कि मेरे को लगा था यूपी बिहार में होंगे, नहीं है क्योंकि सर, ऐसा नहीं करप्शन है का कि यूपी जड़ बिहार में नहीं मेरे होंगे। मेरा माइंडसेट है, करप्शन का जड़ यूपी बिहार है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक मतलब दैट। मेरा वो या कॉन्सेप्ट था, बट अभी जैसे आपने बताया कि राजस्थान और दिल्ली, तो क्यों आपको लगता है, मतलब राजस्थान दिल्ली क्यों, मतलब आई एम नॉट एबल टू क्लियर दिस एक्चुअली पिक्चर आउट। द इशू ऑफ डमी स्कूल, देखिए आपके समय क्या डमी स्कूल था? आई डोंट नो। नो, मुझे तो नाम भी नहीं मेरे को पता था डमी भी कुछ होता है। एग्जैक्टली डमी स्कूल या मेरे को भी सुन के थोड़ा सा डिफरेंट लगा। इट्स सरप्राइजिंग सर, इवन ये जो सिस्टम शुरू होता है लास्ट एक डिकेड से, अच्छा। ये ऐसा कुछ नहीं था। एजुकेशन सिस्टम वाज वेरी गुड। ये जो विशियस साइकिल शुरू होता है लगभग लास्ट एक डिकेड से शुरू होता है। एंड ये बहुत बड़ा, आई कैन से, एक रैकेट है, राइट। एंड जो सिस्टम है आपके कोचिंग, इट्स ओके, बट जो कोचिंग सिस्टम आया आपका, फाउंडेशन प्री फाउंडेशन आया, कोचिंग सिस्टम से ये शुरू होता है डोमी स्कूल का। क्योंकि कोचिंग सिस्टम से शुरू होता है। कोचिंग सिस्टम शुरू होता है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट आए गए हैं, कॉर्पोरेट कोचिंग आ चुका है, उनका रेवेन्यू हम लोग जैसे स्कूल का हजारों गुना का रेवेन्यू है, इतना बड़े बड़े जायंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। एंड मोर और लेस जो आप पूछ रहे हैं ना कि राजस्थान, स्पेसिफिकली मैं बोल सकता हूँ कोटा जैसी जगह, राइट। अच्छा, राइट, स्पेसिफिकली कोटा, मतलब कोटा जो राजस्थान में है बहुत सारा, कोटा इज द कोचिंग का हब, हब बोला या जाता है कोचिंग का जिसको। हब बोल सकते हैं। दिल्ली ऑल्सो, तो जितना जो फाउंडेशन प्री फाउंडेशन, जितना बड़े जायंट कोचिंग इंस्टीट्यूट उनसे ही स्टार्ट होते हैं। सो जब वहीं स्टार्ट होगा, बच्चा उन्हीं के पास पढ़ेगा, और वो बच्चे को ये बोल दिया गया कि भैया स्कूल जाने की जरूरत है नहीं, हम आपको सीबीएसई पास करवा देंगे, आपको हम इंजीनियर भी बना देंगे, डॉक्टर भी बना देंगे, सब कुछ हम बना देंगे, आप एक लमसम अमाउंट आप दो। एक लमसम अमाउंट हमें दे दो। एंड सिस्टम उसी से ये शुरू होता है, सिस्टम उसी से चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल आपको मिलेंगे जो कि दिल्ली एनसीआर होगा या राजस्थान होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बनारस में भी नहीं, बनारस में भी है, कि जहाँ पे बच्चा सिर्फ एनरोल्ड है, स्कूल नहीं जाता है, ना एक सिंगल डे भी नहीं जाता है साल भर, इसे जाता एक जाता विदिन ही डे नहीं। नहीं जाता है। सर कैसे जा सकता है, यू सरप्राइज। मैं एग्जैक्ट नाम नहीं लूंगा, बट 2 साल पुराना एक कहानी है ये। एंड दिस द फैक्ट, द चाइल्ड गॉट वेरी गुड रैंक इन जेई, राइट। एंड XYZ कोचिंग ऑफ राजस्थान क्लेम्ड कि हाँ, दिस एंड दिस चाइल्ड हमारा हमारे। रेगुलर बैच में था, हाँ, एंड AIR रैंक फर्स्ट और सेकंड और थर्ड हाँ। आ गया पेपर में। उसी बच्चे को बिहार का किसी एक स्कूल ने दिखाया कि दिस चाइल्ड वाज माइन एंड ही गॉट AIR रैंक दिस। अब ये अब तो। ये हो गया है कंट्रोवर्सी। हाँ, भैया ऐसा कौन सा सिस्टम था कि डेली बच्चा 2 बजे बिहार तक से पढ़ता कोटा। है, बिहार से कोटा पढ़ने जाता था। सो पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, स्कूल को भी ये सब को ध्यान रखने की जरूरत है। मैं कि ये तो चोरी मेरा करे छोटा सा तो भी कहानी नहीं, चोरी तो हिसाब सर से करना ही करे। नहीं, एजुकेशन में किस चीज का चोरी सर? बट अगर पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है, एजुकेशन कैन नॉट बी बॉट। तो फिर दैट कैन नॉट बी डन। तब सीबीएसई का क्या किया, सीबीएसई ने, अभी नहीं पुराना ही सिस्टम से, शायद मेरे टाइम भी सिस्टम था, 75% अटेंडेंस चाहिए होता है, 75% हम लोग के अटेंडेंस। टाइम भी ये हाँ सिस्टम यही था। था 75, मेरे को अभी भी याद है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हाँ, भी पचहत्तर सेम परसेंट था सेम। अटेंडेंस है। अब 75% अटेंडेंस चाहिए होगा, और अगर नहीं है तो हम उनको एडमिट कार्ड रिलीज नहीं करेंगे। ये अधिकार किसके पास? 75% अटेंडेंस देने का अधिकार स्कूल। स्कूल के पास है। हाँ, जब स्कूल के पास ही है, वही स्कूल जमी स्कूल कर रहा है, तो वो दे क्यों वोंट लिखेगा कि ये मैनिपुलेट इट। बच्चे का 25% अटेंडेंस? फेक अटेंडेंस लगना शुरू हो गया। ये चीज अगर रोका जा सकता है एक ही तरीके से, कि रियल टाइम वर्चुअल अटेंडेंस, सॉरी डिजिटल अटेंडेंस स्कूल कैंपस में हो, और इमीडिएटली बीइंग रिकॉर्डेड, डिजिटल अटेंडेंस, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स, या बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस और रियल टाइम बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस, माने किस जगह पे वो बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस दिया है। अदरवाइज देखेंगे हर मोबाइल में बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस का ऐप चला जाएगा, और बच्चा कहीं भी हो वहीं से अटेंडेंस लगा देगा।
जैसे आपने ये एक सोल्यूशन दिया है, तो आई डोंट थिंक इट इज फीजिबल। नहीं आप खुद सोचिए, मतलब बच्चे हैं, उनसे डेली बायोमेट्रिक करवाना, नहीं, तो वो तो करा क्या रहे ये हैं, जैसे फीजिबल है? द स्कूल लाइक मी, माइन, वी आर अच्छा, डूइंग, ऑल स्कूल ऑफ वाराणसी दे आर गोइंग फॉर द दे आर गोइंग बायोमेट्रिक्स, फॉर या बायोमेट्रिक। या we are having the biometrics attendance, and at the same time we are having the manual attendance also. दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, Yeah, मेरे को ये चीज नहीं पता yeah. थी। We are having क्योंकि biometrics attendance, even the face recognition attendance we are having, even now we are having the ID card chip हाँ, आईडी also. कार्ड का Yeah, चिप हमारे that's समय भी also आ the गया था। biometric attendance, the system is हाँ, there. हमारे समय भी आई स्टडीड इन वीआईटी वैल्यू, तो हम्म। उसमें तो ये था कि आप एंटर कर लें तो चिप ऑटोमेटिक रीड कर लेगा, है ना? एंड मोर ओवर, जैसे उसमें एक कंस्ट्रेंट हमें लगता था, जब हम लीव लेकर के बाहर जाना है, तो उसमें अगर लोकेशन डाला है कि हम एक्स जगह जा रहे हाँ, हैं, वो और ट्रैक अगर हम वाई जगह पहुंच गए, ट्रैक करेगा। तो हमारे घर कॉल आ जाता था कि सर वो है, वाई इज ही इन या वाई अभी भी लोकेशन। वो है कि आईडी कार्ड में चिप लगा रहता है। सपोज जो बच्चा स्टॉप नंबर 5 पे उतरना है हाँ ट्रांसपोर्ट में, अगर 4 में उतर गया तो तुरंत एक मैसेज पेरेंट्स के पास, एक हमारे पास भी आ सकता है। हाँ, तो करेक्ट। देयर आर वेज, बट अब ये बहुत मैंडेटरी नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट मैंडेटरी कर ले कि हम्म। बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज मैंडेटरी, पहला, और जीपीएस ट्रैक्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, मोबाइल में ऐप दे दिया, जाके राजस्थान से बायोमेट्रिक अटेंडेंस देते रहेगा, कौन कौन सा अच्छा, फर्क जैसे पड़ता है? एक चीज है, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ इंडिया में ही है, या फिर दिस दिस ओनली इन इंडिया, दिस दिस कंसेप्ट ओनली, इज गोइंग आउट ऑफ या इंडिया, नहीं नहीं, दिस ओनली इन इंडिया। ओनली इन इंडिया? अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि किसी भी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम एंड में इतना व्हाई बड़ा डू यू थिंक फ्लॉज। कि ऐसा नहीं हो रहा है बाहर और इंडिया में ही हो रहा है? सर क्योंकि देखिए, कोचिंग सिस्टम बाहर भी है। कोचिंग सिस्टम बाहर भी है, लेकिन जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है ना, और हमारा जो कोचिंग डिपेंडेंसी है, एंड हमारा जो सिस्टम बना है, सी आई एम नॉट टेलिंग कि हम्म। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा, हमारा एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हम्म। आई डू रियलाइज, राइट, एंड आई स्टडीज द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द डिफरेंट कंट्री, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट है, लेकिन उसमें बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन के साथ हमें उसका टेक्नोलॉजी ऑपरेशन की जरूरत है, कि जहाँ पे लूफोल्स है, लूफोल्स को रोका जाए, राइट। जैसे बहुत सिंपल है सर, अगर हम डोमी स्कूल आज के डेट पे हम रोक सकते हैं, हाँ, मेरा वही नेक्स्ट क्वेश्चन वही अगर मैं हम सोच रहा था रियल टाइम कि सीबीएसई जीपीएस ट्रैक, इतनी बड़ी संस्था है, अगर वो चाहे तो एक दिन में सब सारे डमी स्कूल्स को ऑफ एकदम कर एकदम सकता सर, है। एकदम कर सकता है। सरकार तो चाहे एक दिन का काम है सर, आज के डेट पे ये कर दे, मैंडेटरी कर दे, कि रियल टाइम जीपीएस ट्रैक अटेंडेंस हर एक बच्चे का 75% मुझे चाहिए। एंड जिस बच्चे का हम एलओसी मतलब रजिस्ट्रेशन कर दिए बोर्ड में, 9th में, 10th में, 11th 12th में, वो सीधा ट्रैक्ट होकर उनके पास रिकॉर्डेड हो जाए, हमें भी भेजने की जरूरत नहीं। हाँ, मतलब अगर ये हो जाएगा तो आई थिंक विद इन तुरंत वन खत्म डे इट विल बी सर, ओवर। एक दिन नहीं लगेगा सर, सब हाँ, भागे भागे चलाएंगे, क्योंकि जिसका 75% से नीचे आया, ऑटोमेटिकली तो फिर हमें भी ये कुछ करने हो की क्यों जरूरत नहीं रहा है? व्हाई डू यू थिंक, मतलब नहीं। व्हाट इज दैट्स द व्हाई आई डिले? टोल्ड कि जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा ये बिजनेस है, कोचिंग हम्म। बिजनेस, इट्स ह्यूज बिजनेस। सर आप देखे होंगे बनारस में भी, दुर्गा कुंड एरिया में, हाँ, आप शाम को कोचिंग्स चले है, जाएं सर, काफी सारे कोचिंग्स काफी सारे कुछ ना हो तो रास्ते में 40 से 50 हजार बच्चे दिखेंगे। इट्स द हब ऑफ द कोचिंग फॉर द पूर्वांचल, हैं। पूरे अच्छा। पूर्वांचल का हाव है। कुछ ना तो एन नंबर्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं, टॉप रैंकिंग, प्रोफेशनल कोचिंग, देन आपके कॉर्पोरेट कोचिंग से लेके लोकल कोचिंग तक, एंड हर एक जगह की कहानी वही है, हमारे पास आओ हम देख लेंगे। गवर्नमेंट ने सिस्टम भी बनाया कि इस समय से लेके इस समय के बीच में बच्चे को आप कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो भाई, कोचिंग एफिलिएशंस भी तो कोई ना कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी देती होगी। कोचिंग एफिलिएशन तो दिस इज सिंपल रजिस्ट्रेशन सर, रजिस्ट्रेशन है, कुछ बेसिक पैरामीटर है कि यहाँ बाथरूम होना चाहिए, साइज होना चाहिए, साइज बीच में आप न्यूज में पढ़े होंगे, बहुत सारी चीजें आया था कि हम्म। फायर एक्सटिंग्विशर ये लगना हाँ, चाहिए, ये वो नहीं लगना था, चाहिए, हाँ। बट everywhere the money works. ओके। Again, that's a very important thing. In India, money works a lot. पैसा सब कुछ कराता है। क्योंकि देखिए, व्हेन इनिशियली मैं इस लाइन पे आया था इन डिजिटल मार्केटिंग, सो आई सॉ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन एकेडमी, हम्म। रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी। बट ड्यूरिंग कोविड, मतलब पोस्ट कोविड के बाद स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि इट इज नॉट इजी। तो बट व्हेन आई गॉट इनटू सम मेंटोर्स क्या जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं, हम्म। तो दे वर लाइक कि नहीं, इट इज इजी, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विथ गुड पीपल टू मेक इट हैपन। तो वो कैसे, मतलब एक है कि इम्पैक्ट क्या करता है ये इस सिस्टम पे, मतलब माय क्वेश्चन इज कि सीबीएसई इस सिस्टम को क्यों नहीं टेक ओवर कर लेता है, कि कोचिंग भी उसी के पास जाए, एंड वो उससे आपको क्या ये नहीं लगता कि
जो टीचिंग क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी स्टूडेंट्स में, और एंथुजियास्ट आएगा स्कूल जाने का। क्योंकि आप समझिए अगर आई कोचिंग अंडरस्टैंड आप इंस्टीट्यूट जो एक है। बोलना चाह रहे हैं सर। मुझे नहीं लगता कि मेरे टाइम पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट था, हाँ, हमारे टाइम पे नहीं भी था। नहीं था। एंड उस समय पे आराम से एआई ट्रिपल ही हुआ करता था, हाँ, होता था। होते थे वही बच्चे बिल्कुल सिलेक्शन होते होते थे। थे, ऐसे ही जाते हाँ, थे। एनटी नहीं कराता था, अलग ऑर्गेनाइजेशन था कराते थे, सीबीएसई कराता था डायरेक्ट। उस समय भी सर नीट का एग्जाम होता था, हाँ, सीपीएमटी बोलते थे, पीएमटी यस, सीपीएमटी हाँ, बोलते थे। सीपीएमटी बोलते थे। होता था। तो दिक्कत क्या है कि हमारा जो सिस्टम, मैंने बोला ना कि ये धीरे धीरे मनी मेकिंग बिजनेस बनाया गया। ऐसा नहीं है कि आज बच्चा अगर कोचिंग ना जाए तो क्वालिफाई ना करे, इट्स नॉट लाइक दैट। आप या कोचिंग का रेशियो देखें तो कोचिंग बड़ा मजे से दिखाता है कि मेरा 20 बच्चा सिलेक्शन हो, कभी वो हाँ, दिखाए कि 20 बच्चा कितना बच्चे थे, अरे उनका 10,000 बच्चे बैठे होंगे तो 20 बच्चा क्वालिफाई किए होंगे, अब रेशियो निकाल लीजिए। मतलब हम लोग जाते हैं दुर्गा कुंड तो बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हैं हम्म। कि अब सर जाके उस जगह पे एक बार नॉक कर लीजिएगा, 20 आपके पास लोग, कितना बच्चे 25 पढ़ रहे हैं, लोग। कितना बच्चे पढ़ रहे हैं। 10 बच्चे पढ़ रहे होंगे, सॉरी 10,000 बच्चे पढ़ रहे होंगे तो 20 बच्चा आया है, 25 बच्चा आया है। तो व्हाट इज द परसेंटेज। लेकिन पेरेंट्स को बाकी लोगों को दिखता है "अच्छा, इतना बच्चे आया, अरे एग्ज़ैक्टली। 10,000 में इतना बच्चे आए हैं, आप वहां हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बीइंग ए पेरेंट्स ऑल्सो, आई ऑल्सो 2 किड्स। हुँ, तो मैंने सिंपल है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मुझे पता है मेरे बच्चे का क्या औकात है, हुँ, ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। तो मेरे लड़की भी थी, लड़की के लिए बायोलॉजी का ये लिया, पहले बार में नीट थी, नीट में 450 460 पहला स्कोर हुआ, तो मुझे पता था कि जनरल कैंडिडेट है, 650 से नीचे हो ही नहीं सकता, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि 4 साल भी मेहनत करा के मैं 450 से 650 नहीं ला सकता। एकदम रेगुलर स्कूल करवाया था, 6 डेज वाला स्कूल कराया था, नॉर्मल एकेडमिक कोचिंग कराया था। अगर नॉर्मल एकेडमिक कोचिंग करके वो बच्चा 450 ला सकता है, तो थोड़ा सा पूछ के होता तो 600 ला ही ले ही आया होता। हुँ, 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 सिमिलरली फॉर माय सन आल्सो, वो इंजीनियरिंग के लिए मैंने ये करवाया। स्कूल नॉर्मल स्कूलिंग था उसको, ऑल 6 डेज ही यूज्ड टू गो। उसके बाद जो पढ़ सकते हो भई, आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा ना। बच्चे भी हार्ड वर्क तो आसान करना ही तरीका अपना पड़ेगा। लिए है ना सर। करेक्ट। स्कूल भी नहीं जाएँगे, आराम से 3 हाँ, घंटा जाके कोचिंग में पढ़ लेंगे। तो भैया जो 6 घंटे का स्कूल और 3 घंटे का कोचिंग, 9 घंटा पढ़ाई में, प्लस 9 घंटा पढ़ें तो 5 घंटा घर में पढ़ना पड़ेगा। 14 आवर्स का आपको मिनिमम स्टडी चाहिए डेली। बच्चा आसान तरीका क्या ढूँढ लिया, 3 घंटा कोचिंग जाओ, 3 घंटा घर में पढ़ लो, 6 घंटा काम हो गया। हुँ। लेकिन वो भूल जा रहा है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उसको याद आता है, तो उसका तो हाथ में कुछ लगा नहीं। जैसे जब व्हेन आई यूज्ड टू बी इन क्लास 12 के आसपास, तब ये कैट जी, फिट जी, ये सब आए थे। तो आई यूज्ड टू बी fascinated, मतलब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड था बट हुँ, मेरे हुँ, सब जाते थे फ्रेंड्स, एंड दे यूज्ड टू से, मेरा मेरा एक फ्रेंड भी था जो बोलता था हाँ, आई एम डूइंग माय स्कूलिंग फ्रॉम फिटजी। हुँ। तो आई यूज्ड टू बी सरप्राइज्ड कि भाई फिटजी स्कूलिंग, मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो फिर कि कैसे करता है? सरप्राइजिंगली देखिए, दीज़ आर ऑल कॉर्पोरेट मैंने जैसे बोला, स्कूल खोलना तो सर आप चाहें तो आप भी खोल सकते हैं, आई हाँ। कैन हेल्प यू, राइट? सो जो इतना जिनके पास पैसे हो, जो कोचिंग कॉर्पोरेट है, क्या स्कूल नहीं खोल सकते हैं, एग्जैक्टली, मैं वही समझना चाह राइट? रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हाँ। बहुत बड़े-बड़े कॉर्पोरेट कोचिंग हैं, बनारस में भी आके अपना स्कूल खोल चुके हैं, और वो स्कूल डमी स्कूल चलेगा। उनके किसी दूसरे छोटे स्कूल के ऊपर माने डिपेंडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है, उनका अपना डमी स्कूल चलाएँगे और आराम से कोचिंग में बच्चा पढ़ाएँगे। तो प्रॉब्लम ये है कि कहीं से तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में इतना अंकुश होना चाहिए कि ये सब चीज़ को रोक-टोक हो। तो क्या मतलब, जैसे आपने बोला कुछ रेगुलेशंस होने रेगुलेशंस चाहिए, है, तो मतलब क्या रेगुलेशन, क्योंकि एक आपने बताया कि एफिलिएशन डीएफिलिएट कर दी जा सकती पहले है, तो डीएफिलिएट हो कोचिंग को जाता है, डीरजिस्टर कर सकते हैं, डिग्रेडेशन हो जाता है। डीरजिस्टर कर बट सकते मेरा हैं। पॉइंट ये है कि जैसे उस हद तक ही ना जाए कि उसको सर डीएफिलिएट इसके करना लिए पड़े, एक ही चीज़ तो मैं हम लोग बोलूँगा, क्या मेजर्स, मतलब व्हाट सीबीएसई कैन टेक? सीबीएसई सर सीबीएसई अपना मेजर्स ले रखा है। हम्म, तो अभी मैंने आपको दिया था कि 75% अटेंडेंस हाँ, मैंडेटरी कर रखा है। अगर मैं स्कूल वाला में लिख देता हूँ कि सर आप नहीं आए और मैं 75% आपके नाम से लिख देता हूँ, तो सीबीएसई क्या कर सकता है? स्कूल की गलती है। स्कूल की गलती है। हमने सीबीएसई को कंप्लेन किया, सीबीएसई ने 21 स्कूलों को एक झटके से हटा दिया, हम्म, ठीक है? सीबीएसई ने पब्लिक रिलीज़ प्रेस रिलीज़ निकाला है कि ऐसा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशंस है तो इन्फॉर्मेशंस हमें दीजिए, दीजिए। हम तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हाँ। हेल्पलाइन नंबर चालू किया है कि ऐसे है तो आप बताइए, हम तुरंत करेंगे। सीबीएसई सब कुछ अपना कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? बीइंग अ पेरेंट्स हम क्या कर रहे हैं? हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो यहाँ आता है पेरेंट्स का और बच्चा का। मुझे मेरा वर्थ पता है। सी व्हिच आई डू बिलीव, ऊपर मतलब वाला ने मुझे आई थिंक द मेन थिंग, रैट रेस में मत जाओ। डेफिनिटली दैट्स आई एम कमिंग टू यू सर, कि आई डू बिलीव दैट अगर ऊपर वाला ने मुझे नीचे भेजा है तो मेरे लिए व्यवस्था है। हर बंदा इंजीनियर, हर करेक्ट। बंदा डॉक्टर्स नहीं होगा। नहीं हो इतना सकता। सारे प्रोफेशंस है, मुझे कोई प्रोफेशंस लेना है और मेरे लिए व्यवस्था बना के भेजा गया, दिस इज बिल्कुल। वेरी ट्रू। करेक्ट। द इसलिए मैं प्लान मैट इज रेस, ऑलवेज क्रिएटेड। या
मैं ड्रेस में रेड ड्रेस में ना जाए, मैं अपना वर्थ देख लूं एंड काम करूं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल सर यहाँ पे आता है मेरे पेरेंट्स के और बच्चे के। बच्चा इजी वे ना अपनाए, कोई भी अच्छा चीज इजी वे में नहीं मिल सकता है। आपको 99.9% हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। जो 0.1% दैट इज ब्लेसिंग्स, एंड ओनली ब्लेसिंग्स विल वर्क। जैसे कोई अभी शॉर्टकट नहीं चलता है। जो आपने बोल रहे हो शॉर्टकट एंड एवरीथिंग, जैसे मेरी भांजिया है, आई हैव हम्म, कजन्स हम्म, जो अभी जेन जी जिसको बोलते हैं उस हाँ, फेज में आ रहे ओके, न्यू जनरेशन। हैं। जेन जी जिसको बोलते हैं, तो इनका मैंने देखा है कि इनको हर एक चीज ना शॉर्टकट भी एंड बहुत जल्दी चाहिए। सर आई लिटिल डिफर ओवर हाँ। हियर। आपका अपब्रिंगिंग कैसा है, क्या हम्म। कल्चर है घर का, दैट्स मैटर्स अ लॉट। सी ये जो जनरेशन है ना, जो हमें 15 मिनट लगता है कोई चीज ग्रैप्स करने के लिए, जनरेशन 15 सेकंड में करता है। एग्जैक्टली। राइट। तो उसको हम ये नहीं समझे कि नहीं, ये हमसे डेफिनेटली दे आर डिफरेंट है, तभी तो दूसरा जनरेशन है। मैं अगर एक्स जनरेशन हूँ तो आप अल्फा कहे हैं, अब जेनजी आ रहा है जेन और जी क्या आ क्या गया। आएगा। तो डेफिनेटली, बट स्टिल आई डू बिलीव कि हाँ, मैं एक्स जनरेशन से हूँ और आज भी मैं इस प्रेजेंट जनरेशन को मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखता रखता हूँ। हूँ, करेक्ट। राइट। तो मेरे बोलने की मतलब ये है कि जनरेशन बदलेंगे, उसके साथ उनका चीजें बदलेंगे। हम अपना कल्चर और अपब्रिंगिंग कहीं पे छोड़ा है। बीइंग पेरेंट्स हमारा कल्चर और अपब्रिंगिंग करेक्ट। कहीं छोड़ा है, उसको हम ना हाँ, आई मीन आई विल एग्री विद दिस कि पेरेंट्स आर बीइंग मोर सॉफ्ट, भूलें। पेरेंट्स आर बीइंग मोर, यू नो, हद से ज्यादा मतलब केयर आई सर गेस विल ये हो रही है। सरप्राइज इन पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अर्लियर यूज्ड टू हैव 98% 99% अटेंडेंस। हाँ, आज 10 बार फोन करने के बाद सर 70-75% अटेंडेंस नहीं होता है। आपको अपने पेरेंट्स का। बच्चे का, हाँ, मैंने साल में 4 बार बुला रहे हैं, आपको इतना समय नहीं है कि 4 बार आके पेरेंट बच्चे का अपना आप प्रोग्रेस देख लो, जिसके लिए इतना खर्चा कर रहे हो, जिसके लिए बड़ा सपने देख के रखे हम्म। हो, जिसका पूरे घर का शायद ड्रीम वही हो। जैसे फॉर मी, मेरे दोनों बच्चे का जो ड्रीम है पूरा मेरा घर का ड्रीम है। करेक्ट, करेक्ट, और उसके लिए मैं एब्सोल्युटली। अगर लापरवाह हूँ तो इट्स वर्थलेस। आज जो काम कर रहा हूँ मैं, दिन रात काम करना, कुछ भी कर रहा हूँ, दैट्स फॉर माय किड्स। हम्म। मैं अपना एनरिचमेंट तो है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को मैं फुलफिल कर रहा हूँ, नहीं, साथ ये में मेरा तो फैमिली है। अग्रीड है, क्योंकि जो मैंने आजकल देखा है, मतलब आई हैव बिकम रिसेंटली अ पेरेंट, बट अभी हम्म। मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता है, तो मैं भी उस जगह पहुंचूं, बट अभी तक मैंने देखा है कि पेरेंट्स आर वेरी कंसाइज कि ये मत करो, या ये करो, ये कर लो बेटा, ये इजी है, ये ऐसे, तो वो ही पुश कर रहे हैं कि बेटा इजी कर लो, दैट्स वेरी हार्ड वर्क मत अमेजिंग, करो, दैट्स अमेजिंग। तो कि बच्चे, गाड़ी में बैठे बैठे खाना आ गया खा लो, अरे जाओ बच्चे, यहाँ घूमाते हैं, यहाँ गाड़ी ले जाओ पहले। सर मतलब अगर क्लास 10 तक तो हमने ये भी नहीं सुना था फ़ोन क्या होता है। सर फोन छोड़ दीजिए सर। हमने हम मतलब जब तक 18 साल का नहीं हुए, ग्रेजुएशन नहीं किए, हमें कभी पापा का या किसी का हाँ, बाइक स्कूटर, वगैरह भी हाँ, नहीं स्कूटर मिलता या था। बाइक को चलाने नहीं नहीं दिया मिलता था। था। आज क्लास 8 में बिना वैलिड ड्राइविंग जाओ लाइसेंस में ले आराम जाओ। से चला रहे हैं, बिना हेलमेट में चल रहे हैं। साइकिल तो भूल ही गए, साइकिल तो है ही नहीं सर, वो सिस्टम से भूल ही ही बाहर गए। है। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स को इसमें अपना पैसा, हाँ, एंड मैंने जो वो जो सोशल फेक स्टेटस है ना, फेक सोशल या स्टेटस फेक दिखाना। सोशल स्टेटस दिखला, लेकिन बच्चे हाँ, को हम जिंदगी भर बच्चे के साथ नहीं है सर। करेक्ट, मेरे जो मानना एग्ज़ैक्टली ये है, करेक्ट। या मेरे जो मानना है कि हम बच्चों को इतना वो मजबूत आपके बना के रखें। अम्ब्रेला में जब तक है हाँ, तब तक वो इस सिचुएशन में ठीक है, बट उसको तो अम्ब्रेला के इनसे बाहर निकल जाना जाएगा तो ही क्या होगा पड़ेगा। उसका, निकलना तो होगा एक दिन। तो हमें ये करना होगा कि नियर फ्यूचर, मैं तो उसके साथ 25 साल हूँ, हुँ। आने वाला 45 साल कैसे बिताएगा वो। बच्चे को उसी के लिए तैयारी करना है। पेरेंट्स भी शॉर्टकट अपनाने लग तो गए हैं। सर मतलब व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस इज दैट कि क्या ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट्स होना चाहिए, मतलब आई थिंक सीबीएसई को ये चीज लेना चाहिए कि ये सारे पॉइंट्स स्कूल समझाना चाहिए, दिस शुड बी मैंडेट कि ये स्कूल्स की जिम्मेदारी हो जाए कि ये सारे पॉइंट समझाए। सर डेफिनेटली है, अभी भी है। अच्छा, अभी भी हाँ, है। अभी भी है। बट हाउ मेनी स्कूल्स आर एथिकल, राइट? मी एंड माय सीईओ दोनों ही 50 बार हमारे पास भी प्रेशर आता है, नॉन हम्म। अटेंडिंग दिस। हमारा आइडियोलॉजी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे सीईओ बोलते हैं, अगर हमें बिजनेस ही करना था तो दूसरा बिजनेस करते। हम्म। स्कूल का बिजनेस में पैसा थोड़ा है। इट्स अ फिलैंथ्रोपिक वर्क। वी आर डूइंग समथिंग यूनिक। हम्म। और हम हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लें। हमारा कुछ तो आइडियोलॉजी होना चाहिए, हम किसके लिए काम कर रहे हैं एट द एंड। बच्चे के लिए कर रहे हैं। हम्म। मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर कोई बच्चा अगर नर्सरी में है तो ये बच्चे को मैं काम किसके लिए हम्म। कर रहा हूँ, 2040 के लिए काम कर रहा हूँ हम्म। बच्चा। मैं टीचर को बोलता हूँ ये जो बच्चा तुम्हारे पास है आज, ये करेक्ट, वो 10 साल 2040, बाद फ्रूट देगा। हाँ 2040 में सर, 20 साल के हाँ। बाद वो निकलेगा। हाँ। तो आज जो हम ये विजुअलाइज करते हैं कि 2040 में क्या होगा, और हम्म। उसी तरीके से उस बच्चे को लेते हुए हम सीखते हुए लेते हुए जाए, नर्चर करते हुए ले जाते हैं। इसमें अगर ये जो विशियस साइकिल है, डमी स्कूल, स्कूल नहीं जाना,
100% कोचिंग के ऊपर ट्रस्ट करना, सब कुछ। सीबीएसई ने बहुत सारे मेजर ले रखा है, अगर आईआईटीज़ में कहीं भी एडमिशन, ऑल गुड कॉलेजेस उनको 75% मिनिमम ये रिक्वायरमेंट होता है हुँ, रिजल्ट का भी, तभी वो एडमिशंस मिल सकता है। बहुत कुछ किया है, राइट? एंड ऐसा भी मेरे पास भी इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत सारे केसेस हैं कि हुँ, बच्चा इधर जेईई क्वालिफाई कर लिया लेकिन उधर 75% ही नहीं आया, कंपार्टमेंट आ गया। केसेस हैं ऐसे। अच्छा, एक जैसे एक क्वेश्चन और आ रहा है, जैसे डमी स्कूल्स में कई बार कुछ अच्छे बच्चे भी एनरोल हो जाते होंगे, होते हैं, एकदम होते हैं। और सी फिर दिस क्या यही वही बच्चे हैं जो क्वेश्चन्स उठाते हैं कि टीचिंग इज़ नॉट अप टू द मार्क? अब देखिए 1-2 बच्चा एक्सेप्शनल है, डमी स्कूल में चला गया, मिसलीड हो गया, हुँ, बिकॉज़ मैंने बोला ना कि ऊपर वाला का दिया हुआ है। और फिर उसका एजुकेशन सिस्टम से विश्वास ही उठ जाता है। डेफिनिटली वो ये अप्रूव करने लगता है कि देखो मैं तो स्कूल नहीं गया हाँ, या 5 दिन स्कूल गया साल भर में एंड आई क्रैक। आई करेक्ट, यस। दैट इज़ एक्सेप्शनल, दिस मे हैपेंस, लेकिन उस हाँ, बच्चों का आप जाके देखिए, मैं जो बोला कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट सर्वांगीण हाँ, विकास, मेरा रेगुलर बच्चा और वो बच्चों को खड़ा कर दीजिए वहाँ पे, अच्छा, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। वो एकेडमिकली मार्क्स तो ला सकता है, हाँ, लेकिन बाकी जो वो स्कॉलस्टिक्स, बाकी जो एटिकेट्स, खड़े होने की तरीका, हुँ, बात करने की तरीका, जो ज़िंदगी जीने की लाइफ स्किल, क्या उसके पास वो लाइफ स्किल है? क्योंकि ये मार्क्स तो उसको आईआईटी का दाखिला दिलाएगा, हुँ, किसी मेडिकल कॉलेज का एंट्री लेवल दिलाएगा। हुँ, उसके बाद जो जॉब करेगा, वो वो नहीं काम करेगा। और जो लाइफ ऑब्वियसली स्किल स्कूल सिखाया होगा, 9, 10, 11, 12 हम लोग समझते हैं कि दिस इज़ करेक्ट, परफेक्ट या वेरी वेरी क्रूशियल। क्रूशियल। हुँ, बाकी जो नीचे वाला वो फाउंडेशनल लेवल है, 9, 10, 11, 12 जो मिस कर गया, हुँ, खत्म है। वो जाके ना अपना ऑफिस को डील कर हुँ, पाएगा, ना अपना लाइफ को डील कर पाएगा, ना अपना फैमिली को डील कर पाएगा, ना अपना जॉब को डील कर पाएगा। हुँ, एंड दैट्स व्हाई माइट फाइंड आउट, बहुत सारे ऐसे आईआईटियंस मिलेंगे, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। 1 साल यहाँ नौकरी किए, उसके बाद चले गए घर हुँ, में बैठ के, देन डिप्रेशन में चले गए, बिकॉज़ दे डोंट नो दैट आर्ट और द स्किल टू मैनेज द लाइफ व्हिच द स्कूल टीचेस देम। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एकेडमिक हमारा एक पार्ट है स्कूल करिकुलम का। उसमें दैट इज़ अदरवाइज़ नोन एज़ हाँ, स्कॉलस्टिक। 50% यू कैन से, 50% 70% बाकी कुछ तो भी ले लीजिए आप। एटिकेट्स या है, जैसे को-करिकुलर हम है, फिटनेस है, डेफिनिटली सब जूनियर चीज़ें। क्लासेस में जाएँगे तो उसको एकेडमिक को 10% मानते हैं, 90% बाकी मानते हैं। 6 टू 8 आ गए तो लगभग 50-50% मान लेते हैं। करेक्ट, 9 टू 12 आ जाता है तो हम 70% एकेडमिक का 30% हम हाँ, को स्कॉलस्टिक समझ लेते हैं। राइट? तो जो ये मिस हो रहा है 30%, 50%, 40% मिस हो रहा है, बच्चा एक अच्छा इंसान कैसे बनेगा? एंड सरप्राइजिंगली सर, यू आर सरप्राइज्ड, अब तो ये क्लास 6 से शुरू हो जाता है। अच्छा, 5 साल, 7 साल इतना पहले तो ये छोटा क्लास एज से? 11 से था, अब ये क्लास 9 तक उतरा, अब तो ये क्लास 6 से। ऐसा ना हो कि नर्सरी से तो शुरू मतलब हो जाए। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप लोग तो इस फील्ड में हो, यू नो द ग्राउंड रियलिटीज़, तो ऐसा क्या लिटिगेशन पेरेंट्स के लिए रहा होगा कि 6 से कोई ही दे दो? लिटिगेशन नहीं है। जैसे आप बोले ना कि हाँ, ईज़ी वे ढूँढो, तो क्लास लुक्रेटिव 6 से ही? लुक्रेटिव ढूँढो, कि पेरेंट्स को भी लगता है मेरे पास पैसा है, ये बोल रहा है, ये बड़ा कोचिंग, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक्स-वाई-ज़ेड कोचिंग बोल हुँ, रहा है कि ये करा देगा, उसका ये रिजल्ट ऐसा दिख रहा है, डाल देते हैं, हो जाए। वो भूल जा रहे हैं कि उसके साथ-साथ और वो बड़ा आसान तरीका देखिए, हुँ, कि उसी जगह पे जा रहा है, वहाँ पे पढ़ भी ले रहा है, कोचिंग भी हो जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, घर चला रहा है। अदरवाइज़ व्हाट वी यूज्ड टू डू, बीइंग अ पेरेंट्स, व्हाट आई यूज्ड टू डू, स्कूल छोड़ता था, स्कूल से आने के बाद, उसके बाद खाना-पीना के बाद उसको एकेडमिक कोचिंग के लिए ले जाता था, उसके बाद शाम को डांस क्लास या गिटार सीखते थे या गाना गाते थे, वहाँ ले जाता था, उसके बाद घर लेके आते थे। उसके बाद अगर कोई बर्थडे-वर्थडे है, सब ले जाते थे, उसके बाद घर में सोते थे। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है इतना। वो सोचता है कि किसी एक जगह पे डाल दें, पैसा दे दें, सब कुछ कर-कर के बच्चा निकल जाएगा इससे। एक जगह पे तो हर चीज़ नहीं हो सकती। स्कूल एक-एक जगह है, जहाँ पे आपको स्किलिंग कराएगा, आपको एजुकेट कराएगा, आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पीयर प्रेशर है, वो वो सिखाता नहीं है। मिलता है। वो कहाँ से मिलेगा? कोचिंग में मिलेगा पीयर प्रेशर, वो सिखाएगा। एटिकेट सिखाएगा, हम कैसे चलते हैं वो तो सिखाते हैं। मेरे स्कूल का बच्चा अगर चलेगा तो आपका एक लाइन से अगर 1000 बच्चे भी आ रहे हो तो आप आवाज़ नहीं आएगा पैर। आप सोसाइटी में चलिए, बड़े हुँ, से बड़े पोस्ट में जूता घसीट के चलते हैं, हाँ, राइट? हाथ हिला के चलते हैं। मेरे बच्चे आपको दिखेंगे स्कूल में हाथ हिलाते हुए नहीं चलेंगे, जो भी होगा हाथ एट द बैक, हैंड्स एट द बैक, स्मार्ट वॉक। दीज़ आर बेसिक एटिकेट्स। मैं किसी ऑफिस में आ रहा हूँ, जूता घसीट के अंदर आ रहा हूँ, वो डज़न्ट मेक सेंस। डोंट मेक सेंस। हाथ हिला-हिला के बात कर रहा हूँ, दैट डज़न्ट मेक सेंस। उनको सिखाते हैं कि हाथ बाँध के नीचे रखिए, बात करिए, अगर ऑटोमेटिक उठ जाता है तो समझिए कि उसी जगह पे उठना था हाथ। हुँ, हाँ, करेक्ट। वो गेस्चर्स अगर या उठ रहे हैं तो डेफिनिटली दैट इज़ फाइन। कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, किस टोन में बात करना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए बात करने के लिए, व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, दीज़ आर ऑल द थिंग्स बीइंग टॉट बाय द जैसे स्कूल। ये सब चीज़ें आप बता रहे सर, तो मतलब एक क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में आ रहा है जी, कि क्या ऐसा भी होता होगा कि कुछ
पेरेंट्स है जो अच्छे स्कूल में डालना चाहते हैं, दे वांट टू टेक ऑल द एक्शंस टुवर्ड्स कि मेरे को एक अच्छा स्कूल में जाना चाहिए, मेरे बच्चे को एक अच्छा स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, बट ड्यू टू एनी मिसकम्युनिकेशन या कुछ भी वो कोई गलत स्कूल में चला। आई एम नॉट सेइंग डमी स्कूल, मतलब एक होता और कॉन्सेप्ट मैंने सुना है कि स्कूल में आइए, स्कूल में रहता है बच्चा, टीचिंग नहीं होती है, कुछ सिखाया नहीं जाता, एंड विद इन 2 or 3 hours द किड लिव्स। है। ऐसा भी सुना है मैंने। ऐसा भी होता है। सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि एजुकेशन कैन नॉट बी अ मनी मेकिंग बिजनेस, हम्म। है ना। माय सीईओ और माय फाउंडर सेक्रेटरी सर डायरेक्टर में ऑलवेज बोलते हैं कि बिजनेस, मैंने आपको बोला बिजनेस करना हो तो दूसरा बिजनेस कर दूसरा सकते करते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करके उसमें रिटर्न थोड़े आता है। हैं। इट्स अ फिलैंथ्रोपिक वर्क। तो जो आप देखे ना, इट्स सरप्राइजिंग, मैं इंस्पेक्शन में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ ओनर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। एजुकेशन क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर बेकार है, एजुकेशन हम्म। क्या है, क्लास 8 फेल। हम्म। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ पर्सन whose educational background is class 10th fail हम्म। and being the head of a premier educational institutions? तो विजन, वो आइडियोलॉजी कहाँ से आएगा? अगर एजुकेटेड ओनर होंगे तो डेफिनेटली स्कूल अच्छा ग्रो करेगा। आज बनारस में बहुत सारे डमी स्कूल हो सकते हैं, बहुत सारे हम्म। हो सकते हैं आज भी। हम एक लाइन में कभी भी उसको हम दिमाग में भी जहन में मिलाते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे जितना ओनर्स हैं ऑल आर वेल एजुकेटेड और इसी बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं। तो हमें पता है कि व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस। आज हम ये कर सकते हैं, लेकिन कल कहाँ होंगे? तो वही स्कूल सर्वाइवल है मेरे लिए। एंड मैं व्यूअर्स को ही बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो 2 दिन 4 दिन 6 दिन डमी स्कूल चल सकते हैं या नॉन अटेंडिंग जा सकता है, 4 दिन के लिए अच्छा लगेगा, बट ये टाइम डेफिनेटली लॉन्ग रन के लिए नहीं है। एंड स्कूल का भी सर्वाइवल वही स्कूल सर्वाइव करेंगे जो अपना विजन, मिशन एंड चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के ऊपर काम करें। इसी दैट्स वेरी पॉइंट पे इंपॉर्टेंट। आई वांट टू मींस फाइनलाइज दिस थिंग कि Sunbeam Academy, so far I have been in Varanasi for the last 10 years, you can say राइट राइट। 10 years में Sunbeam का मैंने नाम सुना है। जी जी मतलब when I came in Varanasi, Sunbeam है, Sunbeam सुना था, जी, या डेफिनेटली मैंने बोला था कि Sunbeam है, Sunbeam इतना बड़ा है, इतने सारे स्कूल्स है, देन डेफिनेटली। पता चला Sunbeam Academy is one part, Sunbeam ये एक वन पार्ट है, अलग अलग पार्ट्स है। तो Sunbeam Academy का आइडियोलॉजी रेस्ट स्कूल से क्या डिफरेंट है, एंड जैसे आप चीज बता रहे हैं एटिकेट्स एंड अदर थिंग्स जो एक स्टूडेंट से ज्यादा एक ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है, डेफिनेटली पॉलिश्ड ह्यूमन डेफिनेटली बीइंग यू या। कैन से। तो why and why is Sunbeam focusing towards that point one? well, I want to know कि why, कि पेरेंट्स ऑब्वियसली बोलते होंगे कि हमें बच्चे को चलना नहीं आता, डेफिनेटली क्या हमारे बच्चे को बोलना नहीं आता। डेफिनेटली पेरेंट्स कैन क्वेश्चन दिस, why is Sunbeam focusing so much on this, and इसका रिटर्न Sunbeam को क्या क्या मिल रहा है। डेफिनेटली। आपके बच्चे शायद अभी हुए बोल रहे हैं, हाँ, कितना महीने की? 3 महीना का 3 होने महीने की। वाला सो होपफुली 2.5 साल के बाद बच्चा स्कूल है। भेजेंगे, तब आपको समझ में आएगा हाँ। कि व्हाट स्कूल डू। आप घर में जब रखेंगे तो फुल टाइम डायपर में रखेंगे, करेक्ट। हैं? वो बच्चा बोल भी नहीं पाएगा, माने बोल भी नहीं पाएगी, कोई बात नहीं, बैठ के हम्म। सुसु कर ली, कोई बात नहीं, खाने के लिए हम्म। आप मेरे स्कूल में भेज दीजिए। और 7 दिन के बाद देखिए, 7 दिन के हम्म। अंदर हम डायपर निकलवा देंगे। हम्म। और घर में बच्चा बोलना शुरू करेगा, और वो भी इंग्लिश में बोलना शुरू करेगा कि अच्छा। वांट टू गो टू टॉयलेट, टॉयलेट मैंने सुसु हम्म। आई है, भूख लग रहा है, पानी हम्म। पीना है। सी, सो आवर स्कूल स्टार्टेड फ्रॉम प्री प्राइमरी पीपी। अच्छा। 2.5 साल 3 साल का बच्चा मेरे पास आता है, हम 18 साल का बच्चा बना के भेजते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हम प्ले करते हैं। 3 साल का बच्चे को हम 15 साल नर्चर करते हैं, 18 साल उसके बाद मेरे हिसाब से, जो भी मैं ह्यूमन साइकोलॉजी और एनाटॉमी जानता हूँ, 18 साल के बाद सर और कोई, शायद उस बंदे में और कोई चेंजेस, स्किल या हाँ, बाकी कोई चीज एक्सेप्टेबल शायद नहीं होता नहीं है, हो सकता नहीं है। होता। तो मेरे फाउंडर्स, चाहे वो डायरेक्टर मैम हो, सेक्रेटरी सर हो, मैं सीईओ सर हूँ, या मेरा हेड ऑपरेशंस मैम हो, या मेरा भी थिंकिंग ये है कि हम बिजनेस करने नहीं आए हैं, हम एक इंसान को बनाने आए हैं। आप जब आपके बच्चे को मुझे देंगे तो कितना भरोसे के साथ देंगे, हम्म। और जो 5 घंटा मेरे पास रहते कितना निश्चिंत होकर रहेंगे आप। हम बहुत छोटे छोटे चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म। अगर वही बच्चे को किसी बर्थडे में किसी के घर भेजे तो 4 बार फोन करेंगे, हम्म। ठीक है, तो वो तो नहीं रही है, ये तो हम्म। नहीं हुआ। कहीं अगर बाहर शॉपिंग में गए तो हम्म। 5 बार फोन करेंगे, लेट हो गया दिस। हम्म। आप स्कूल भेज देने के बाद निश्चिंत हैं जब तक बच्चा घर रिटर्न नहीं आ जाता हम्म। है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं की। आपको ये निश्चिंत रहता है कि मेरी बच्चा घर में जितना नहीं सीख पाए वो स्कूल तो सिखा ही स्कूल में देगा सीख उसको। गया। एंड वी टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी। आपका बच्चा दीजिए, बाकी जिम्मेदारी मेरा है, उसका पूरा पूरा हम। एट द एंड हमारा जो
बेसिक ऑब्जेक्टिव है चाइल्ड सेंट्रिक ही है, हमें क्या इंटरेस्ट है अदरवाइज, करेक्ट। कोई दूसरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम आपका बच्चा अगर लिए हैं तो उसको अच्छे इंसान बना के सोसाइटी में भेजना हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने जैसे बोला कि 15 साल मेरे पास बच्चा रहेगा तो पूरा उसका उसका जो डेवलपमेंट है हम ही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ गड़बड़ भी होगा तो कल मेरे ऊपर ही उंगली उठाएंगे, इस स्कूल में तो पढ़ा था, तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, राइट। सो वी आर वेरी चाइल्ड सेंट्रिक। हम्म। हमारा जो टीचर स्टूडेंट रेशियो इज वेरी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं होगा दूसरे स्कूल जैसे कि 70 बच्चा पढ़ रहा है एक टीचर, नॉट एट ऑल। अगर सीबीएसई का प्रोटोकॉल 40 है तो उससे नीचे ही होगा, उससे ऊपर नहीं हो सकता है। क्वाल दैट इज समथिंग आई हैव सीन इन सनबीम। राइट, मतलब जैसे इनिशियली जब मैं सनबीम से जुड़ा फॉर वर्क, तो व्हेन आई सॉ द स्टूडेंट्स एटिकेट्स इन जय श्री राम, दैट इटसेल्फ स्पोक अ लॉट। मतलब जब हम लोग प्रैक्टिस में भी जाते थे शूट करने के लिए, वी वर डेफिनेटली, या या देयर या व्हेन, या तो आई यूज्ड टू सी कि once you have said silence, तो it's silence. डेफिनेटली, Once you have said okay, we have to move out, so within 5 minutes the hall is empty. या डेफिनेटली। So I means give a lot of uh, you can say hats off to the entire Sunbeam नो Academy इट्स नॉट कि दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि सर उन्होंने अब इतना, बचपन से हमने कल्चर हाँ, को नर्चर कल्चर को किया है, नर्चर किया नर्चर है। किया है। And I think I believe कि not only Banaras, rather not only यूपी but entire इंडिया को, कि डमी स्कूल्स को रिपोर्ट करना चाहिए। एवरीवन शुड रिपोर्ट इट, एवरीवन शुड टेक प्रॉपर एक्शंस जो उनको लेने चाहिए। देयर इज नो हार्म, कोई दिक्कत भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, डरना भी नहीं चाहिए कि कोई कुछ कर देगा, सर हम सोसाइटी के कुछ आके कोई डेवलपमेंट के लिए कुछ कर फायदे के लिए देगा। कर रहे हैं और उस सोसाइटी हाँ, का हम भी एक पार्ट हैं। पार्ट है। तो अगर ऐसा, मतलब बहुत जन डरते हैं कि वो स्कूल वाला नहीं नहीं, फिर दे विल see everything is हॉन्ट अस। dear तो viewers, it's everything confidential because I'm the part of that inspections team also, and in the schooling system I have been for last 26-27 years, so it's very confidential। आपको कहीं से कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन हो तो जरूर से आप उसका एविडेंस कलेक्ट करें, एंड सीबीएसई साइड में जाएं, आपको हरकारा है या हेल्पलाइन है, कंट्रोलर हैं, सब किसी को भी डायरेक्ट भेज सकते हैं, उनको ऊपर डेफिनेटली एक्शन होगा। और ऐसा नहीं कि सीबीएसई एक्शन नहीं लेता है, सीबीएसई एक्शन लेता है और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, प्रोवाइडेड उनके पास एम्पल इंफॉर्मेशन मिले। हाँ, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, डियर स्टूडेंट्स, आपको सोचना होगा कि यू आर प्लेइंग विथ योर लाइफ। आपका लाइफ है और एक ही लाइफ है, और वही जो 3 साल है दैट इज वेरी प्रीशियस। प्रॉपर जजमेंटल होना पड़ेगा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। स्कूल प्ले वेरी पिवोटल रोल इन लाइफ। आप भले आईआईटी क्रैक तो कर लेंगे, लेकिन आपके पास वो लाइफ स्किल नहीं है तो आप आगे का जिंदगी 40 साल जिएंगे कैसे? क्योंकि अभी तो आप 18 का होंगे, 20 का होंगे, 22 का होंगे, आने वाला 50 साल आपको जीने के लिए आपको करेक्ट। लाइफ स्किल चाहिए, जो कि आपको स्कूल देगा, राइट। पेरेंट्स को मैं बोलूंगा कि कोई भी शॉर्टकट मेथड से कोई सक्सेस नहीं होता है। ड्यूटी, डिवोशंस, डेडिकेशंस, डिटर्मिनेशंस एंड इंटीग्रिटी की जरूरत पड़ता है कोई भी चीज के, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। ये 7-8 क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए। कोई शॉर्टकट से कुछ भी नहीं होता है, राइट। लक से भी कुछ नहीं होता, हार्डवर्क ही है, हार्डवर्क ही है, हार्डवर्क ही है, एंड 99.9% इज द हार्डवर्क। 0.1% बाकी सब चीजें, एंड दैट्स ओनली आई डू बिलीव ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स। करेक्ट। So, dear parents, don't even ever think or dream about sending your kids for the dummy schools. You are spoiling the career of your word. And आपका वो ड्रीम नहीं होगा, आई न्यू इट वेरी वेल। आप चाहते हैं कि आपका बच्चे का अच्छे भविष्य हो, अच्छे भविष्य हो तो अच्छा स्कूल का चयन करने की जरूरत है, एंड द किड्स एटलीस्ट क्लास 12 तक रेगुलर होने की जरूरत है। तब हम जिंदगी जीने की जो कलाएं बोलते हैं, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो कलाएं बोलते हैं, वो हम इंस्टिल कर पाएंगे। And I promise you, Sunbeam Academy always strongly stand in this approach that we wanted to uh, brought up. You can say we wanted to work for the holistic development of the students, and हम एक अच्छा सुंदर भविष्य बनाए, एक सुंदर देश बनाए। That's we are committed. थैंक यू सो मच सर for sparing the time for this podcast and making me so valuable of the informations of CBSE, making the entire studio rather so aware about this. And we will also surely work in a team so that if at all we see any dummy school, to so that we inform you and the CBSE Definitely, sir. कि this is something which should be taking place. सर दिस इज द एरा ऑफ द सोशल मीडिया, तो Correct. यू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर। हम Thank हमारा you. तो अप्रोच वेरी लिस्ट अप्रोचेबल है, क्योंकि मेरा जितना बच्चा है, जितना ब्रांचेस वहाँ पे हम अप्रोचेबल हैं। Exactly. लेकिन यू आर द पीपल हु प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसीलिए टू, ये या पॉडकास्ट मैं करना चाहता था थैंक यू आपके वेरी साथ मच, कि या ये थ्रू दिस पॉडकास्ट दिस इंफॉर्मेशन इज शेयर टू द एंटायर वर्ल्ड कि हाउ टू टेक एक्शंस। एंड आई थिंक जितना भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर किया है, द व्यूअर्स वुड लव इट। डेफिनेटली। एंड जिनके बच्चे अभी
छोटे क्लासेस में हैं या क्लास 6 में आ गए, 9th में आ गए, 11th में, उनके लिए वेरी क्रूशियल है। करेक्ट। प्लीज़ टेक द डिसीजंस वेरी केयरफुली। एक बार का सही डिसीजन ज़िंदगी का 50 साल सही चलेगा। चॉइस इज़ योर्स।